Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today we are going to continue with the lesson that we learned in the previous video, that is a dress for the moon. I've explained the meaning of the half of the lesson. So today we are going to continue with the rest of the lesson. Firstly, I will do the reading and then explain its meaning. Madan jumped for joy. Quickly he began to sew a dress of smooth white satin for the moon. When it was done, he called out to the coconut tree, "You must give this dress to the moon, as I cannot reach her." The coconut tree agreed. The following evening, as Madan waited eagerly for the moon to appear, the coconut tree bent down and whispered, "The moon says your dress does not fit. It's too loose." Madan was stunned. "It can't be," he cried. "The clothes I make always fit perfectly." But the moon returned the dress to him, and he had to redo it. He spent the night making the dress a little smaller and gave it back to the tree. The next evening, the moon rose a little later. Madan waited impatiently, but again the coconut tree bent down and whispered, "The dress is still too loose." Madan nearly wept with disappointment. "I can't believe it. How could I go wrong?" he wailed. "I tried to tell you before," said the tree. "After the moon is full, she grows smaller each day until you can't see her at all. I have been noticing this for many years. So, how can you make one dress that could fit the moon properly?" But you would not listen to me. Broken hearted, Madan sat with his head in his hands the whole night. At the break of day, he saw the moon on the other side of the sky. He whispered, "I'm sorry, dear moon. I'm not as great a tailor as I thought." "It's all right," said the moon. "After all, I am the moon. How can I wear clothes as people do?" From that day on, Madan resolved to work harder than before. He was not vain anymore, and his hard work brought him more money. He remembered to send a good part of it to his father. People liked him better because he was an excellent tailor and a humble one too. So we have learned in this lesson so far, we learned that how Madan became the famous tailor of the town and how everyone wanted Madan to be the one to sew their clothes. So he was now very much happy with what he had achieved. He was very much, boastful with that. And one day he decided that he will make a dress for the moon. So today we are going to continue from there now. So जब इसने पेड़ को बोला कि आप जाके मून को बोलो कि मैं आपके लिए ड्रेस बना सकता हूँ, तो मून एग्रीड फॉर दैट. उसने बोला ठीक है, अगर मदन मेरे लिए ड्रेस बनाना चाहता है तो व्हाई नॉट. मदन जम्प्ड फॉर जॉय. मदन इस बात से बहुत खुश हुआ जब मदन को पता चला कि मून ने इस बात के लिए हामी भरी है कि मैं उसके लिए ड्रेस बना सकता हूँ, तो इसको बहुत खुशी हुई. क्विकली ही बिगैन टू सेव अ ड्रेस ऑफ स्मूथ वाइट सैटिन फॉर द मून. तो जल्दी से उसने अपना काम स्टार्ट किया और उसने एक सैटिन, जो एक कपड़ा होता है, एक किस्म का कपड़ा होता है, उसका वाइट कलर का जो था उसका ड्रेस बनाना स्टार्ट किया मून के लिए. व्हेन इट वाज डन ही कॉल्ड आउट टू द कोकोनट ट्री. जब उसने ये कंप्लीट कर दिया, ड्रेस कंप्लीट कर दिया, तो इसने ट्री को बुलाया. "यू मस्ट गिव दिस ड्रेस टू द मून." तुम्हें ये ड्रेस अभी मून को दे देनी चाहिए, क्योंकि आई कैन नॉट रीच हर, क्योंकि मैं उस तक नहीं पहुंच सकता. द कोकोनट ट्री एग्रीड. तो ये पेड़ जो था इसने इसकी बात मान ली. The following evening, as Madan waited eagerly for the moon to appear, the coconut tree bent down and whispered. So अगले दिन शाम को मदन बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था चांद कब निकलेगा, सो दैट वो देख सके कि वो कैसा हुआ है इस ड्रेस को पहन के. तो जो कोकोनट ट्री था वो बेंट हुआ, थोड़ा सा झुका, और उसने इसको आहिस्ता से बोला, "द मून सेज योर ड्रेस डज नॉट फिट, इट्स टू लूज."
तो इसने इसको बोला कि चांद बोल रहा है कि वो ड्रेस मुझे फिट नहीं हुआ, वो बहुत ही लूज़ है। मदन वॉज स्टन्ड, मदन को बहुत हैरानी हुई। इट कांट बी, ही क्राइड, ऐसा नहीं हो सकता। द क्लोथ्स आई मेक ऑलवेज फिट परफेक्टली, क्योंकि इसको अपनी कारीगरी पे जो ये काम करता था इस पे बहुत नाज था, फ़ख्र था। तो इसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो हमेशा हर एक एक कपड़े फिट बनाता हूँ, ये कैसे हो सकता है। बट द मून रिटर्न द ड्रेस टू हिम एंड ही हैड टू रीडो इट। तो मून ने इसको ये ड्रेस वापस भेज दी और इसको फिर से ये ठीक करनी पड़ी। ही स्पेंड द नाइट मेकिंग द ड्रेस अ लिटिल स्मॉलर एंड गिव इट बैक टू द ट्री। तो इसने पूरी रात लगा दी इस ड्रेस को फिर से ठीक करने में, क्योंकि ये बहुत लूज था। तो इसने इसको छोटा करने की कोशिश की एंड फिर इसने वापस ये ट्री को दे दिया कि आप इसको मून को दे के आओ। द नेक्स्ट इवनिंग द मून रोज अ लिटिल लेटर। सो अगले शाम को फिर से जो चांद जब निकला ये थोड़ा लेट निकला। तो मदन वेटेड इम्पेशेंटली, इम्पेशेंट मीन्स बेसब्री। तो मदन बेसब्री से वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। बट अगेन द कोकोनट ट्री बेंट डाउन एंड विस्पर्ड, द ड्रेस इज स्टिल टू लूज। तो बट फिर से ये पेड़ झुका और इसने इसको बोला कि नहीं, अभी भी ये ड्रेस बहुत ही लूज है, ये फिट नहीं आ रही है। मदन नियरली वेप्ट विद डिसअपॉइंटमेंट। ये सुनकर मदन को बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई, उसको बहुत ही बुरा लगा, वो अपने आप से निराश हुआ, उसे निराशा हुई कि कैसे मेरी ड्रेस जो, वो अपने आप से निराश हुआ कि कैसे मैंने जो ड्रेस बनाई वो गलत हो सकती है, वो गलत बन सकती है। आई कांट बिलीव इट, हाउ कुड आई गो रॉन्ग, ही वेल्ड। ये कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं कैसे गलत कर सकता हूँ। वो रोने लगा। आई ट्राई टू टेल यू बिफोर, सेड द ट्री, आफ्टर द मून इज़ फुल शी ग्रोज स्मॉलर ईच डे अंटिल यू कांट सी हर एट ऑल। तो पेड़ ने से बोला, मैं तुम्हें पहले दिन से बताने की कोशिश कर रही थी कि जब मून फुल होता है तो उसके बता है वो उसके बाद छोटा होने लग जाता है और एक दिन इतना छोटा हो जाता है कि वो दिखता ही नहीं है। आई हैव बीन नोटिसिंग दिस फॉर मैनी ईयर्स, मैं कई सालों से इस चीज़ को देख रही हूँ। सो हाउ कैन यू मेक एनी वन ड्रेस दैट वुड फिट द मून प्रॉपरली। तो तुम कैसे एक ड्रेस बना सकते हो चांद के लिए जो उसको परफेक्टली फिट हो, क्योंकि एक दिन अगर वो बड़ा होगा तो उसके फिर अगले दिन से वो छोटा होने लग जाता है एंड एक दिन तो वो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता। तो तुम कैसे एक ड्रेस ऐसा बना सकते हो उसके लिए। बट यू वुड नॉट लिसन टू मी, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो मैं तुम्हें बता ही नहीं पाई। ब्रोकन हार्टेड मदन सैट विद हिज हेड इन हिज हैंड द होल नाइट। सो इस बात से मदन का दिल टूट गया, तो उसने अपना सर अपने हाथ में लिया और वो पूरी रात जो था ऐसे ही रहा, उसका दिल टूट गया था। एट द ब्रेक ऑफ डे ही सा द मून ऑन द अदर साइड ऑफ द स्काई। तो जब उसने सुबह दिन में देखा चांद को आसमान पे, ही विस्पर्ड, आई एम सॉरी डियर मून। तो क्योंकि वो थोड़ा सा उसको दिख रहा था तो उसने मून को सॉरी बोला कि मुझे माफ़ कर दें। आई एम नॉट एज अ ग्रेट टेलर एज आई थॉट, मैं उतना अच्छा दर्जी भी नहीं हूँ जितना मैं समझता था खुद को। इट्स ऑल राइट सेड द मून। तो मून ने इसको कहा कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल आई एम द मून, वैसे भी मैं चांद हूँ। हाउ कैन आई वेयर क्लोथ्स एज पीपल डू, मैं कैसे लोगों की तरह कपड़े पहनूँ, मैं चांद हूँ। चांद जो है वो उसको कपड़ों की ज़रूरत नहीं है इंसान की तरह। फ्रॉम दैट डे ऑन मदन रिजॉल्व टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो उस दिन से मदन ने ये ठान ली कि वो और मेहनत करेगा पहले से भी ज़्यादा। ही वॉज नॉट वैन एनी मोर, वो बेकार नहीं था। ही एंड हिज हैंड हार्ड वर्क ब्रॉट हिम मोर मनी। तो और उसने इतनी मेहनत की कि उसकी वजह से उसको ज़्यादा पैसे आने लगे। ही रिमेंबर टू सेंड अ गुड पार्ट ऑफ इट टू हिज फादर। उसको ये भी याद था कि उसको इसका आधा अपने बाप को गाँव भी भेजना है, क्योंकि उसने वहाँ जब वो शहर आया था उसने बाप को बोला था कि वो जो भी कमाएगा उसका हिस्सा, आधा हिस्सा वो उसको भेजा करेगा। So people liked him better because he was an excellent tailor and a humble one too. अब लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे थे क्योंकि एक तो वो अच्छा दर्जी भी था, प्लस अब उसमें वो घमंड भी नहीं रहा कि मैं ही हर कोई एक ड्रेस जो है अच्छे से बना सकता हूँ, मैं ये काम बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। उसमें अब ये घमंड ख़त्म हुआ, तो अब उसको ज़्यादा लोग पसंद करने लगे। So this was all about the lesson. I hope this is understood to you. Thank you and have a good day.